Galatians chapter 3 verse 29. गलतियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 29वां वचन। We've been speaking about the blessings of Abraham. हम अब्राहम के आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं। And Galatians 3:29 says, और गलतियों के 3:29 कहता है, if you belong to Christ, अगर आप यीशु मसीह के हैं, then you are true children of Abraham. तो आप अब्राहम के सच्चे बच्चे हैं। Come on, say, I am a true child of Abraham. Come on, everyone say, I am a true child of Abraham. See, your real earthly father's name might not be Abraham. आपके जो पारिवारिक सांसारिक पिता के नाम अब्राहम नहीं होगा, But your spiritual father's name is Abraham. लेकिन आपके आत्मिक पिता का नाम अब्राहम है। Hallelujah. Because the word says, क्योंकि वचन कहता है, you belong to Christ. आप यीशु मसीह के हैं। And that's why you are now children of Abraham. इसलिए आप अभी अब्राहम के बच्चे हैं। And all that God has promised Abraham, और जो भी अब्राहम को वचन दिया है, all those promises are now yours. और वो सारे वादे अभी आपके हैं। You know, it's found in Genesis and chapter 12. ये उत्पत्ति की 12 किताब में लिखा गया है। You should read Genesis chapter 12, the first 4 verses every day. आपको उत्पत्ति के 12 अध्याय के पहले 4 वचन को रोज पढ़ना है। Because those are God's promises to you. वो परमेश्वर के वादे हैं आपके लिए। It was first to Abraham, पहले वो अब्राहम के लिए था, but now those promises are for you and for me. और अब वो वादे आपके लिए और मेरे लिए हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you open Genesis and chapter 12, जब आप उत्पत्ति किताब 12वां अध्याय ओपन करते हो, you need to keep your hand on that portion आपको अपने हाथ उस पर रखने and हैं say, these promises are now mine. और कहना है कि ये वादे अब मेरे हैं। These promises are now mine. ये वादा जो है ये अब मेरे हैं। Last week I started speaking on something important. पिछले हफ्ते मैंने कुछ इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात किया। The inheritance or the blessing that God has promised Abraham. आशीष जो अब्राहम को वादा किया था परमेश्वर ने। Abraham did not just sit in his house and wait for that to get fulfilled. अब्राहम सिर्फ अपने घर पर बैठकर उन वादों को पूरा करने के लिए सोचा नहीं। वो इंतजार नहीं कर रहा था. He was not waiting for the promises to be fulfilled. वो इंतजार नहीं कर रहा था कि वो वादा पूरा हो उसकी जिंदगी में। But Abraham was a man who pursued his inheritance. He went behind to find his blessing. लेकिन अब्राहम ऐसा था कि वो वादे के पीछे चला गया ताकि वो वादा उसकी जिंदगी में पूरा हो। He was not waiting, वो इंतजार नहीं कर रहा but he था, was going to take his blessing. लेकिन वो पीछा कर रहा था ताकि वो आशीष उसकी जिंदगी में आए। Hallelujah. And last week I spoke about pursuing our inheritance. और पिछले हफ्ते मैंने बताया कि आपके आशीषों को कैसे पाना है। अपने आशीषों के पीछे लग के उन्हें पाना है. To be behind our blessing and to pursue it and to inherit our blessings. अपने आशीषों के पीछे कैसे लग के उसे पाना है। So there are few principles when you talk about pursuing your blessing. इसमें कुछ बातें हैं आपको जानना है इस आशीषों को कैसे पा सके। Last week I spoke about number 1. पिछले हफ्ते मैंने एक बात के बारे में बताया। The first one was commitment. पहला जो था वो Commitment. We have to be committed to the things of God. हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए कमिटमेंट रहना है। When we know that as a Christian we have to do certain things. जब हमें पता है एक मसीह होने के कारण हमें ऐसे कुछ करने हैं, Then we have to do those things. तब हमें उस वैसे करना है। When you know that as a child of God this is your responsibility. जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे होने के कारण ये सारी बातें करना है, Then we have to stick to that responsibility. तब हमें उन जो कार्यों की ये करना है। What are a few responsibilities for a child of God? ऐसे क्या बातें हैं जो परमेश्वर के बच्चे के लिए होता है। First, one important responsibility is family prayer. पहला जो रिस्पांसिबिलिटी है वो पारिवारिक प्रार्थना When है। I say family, it is full family. जब मैं परिवार कहता हूँ तो वो पूरा परिवार है। Hallelujah. हालेलुया। Daddy does not come home before family prayer, so we all have prayer. पिताजी पारिवारिक प्रार्थना के पहले नहीं आते हैं तो हम नहीं करते। पिताजी आते नहीं इसलिए हम कर लेते हैं. ये पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है. You know, this is not called family prayer. ये पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता। Family prayer is when everyone is together. पारिवारिक प्रार्थना वो होता है जब सब लोग साथ में होते We हैं। have to find time in a day for everyone to come together. हमें समय पता लगाना है जब सब लोग साथ में होकर प्रार्थना करें। It is so surprising to see how much time families spend in front of the TV together. ये आश्चर्य की बात है जब परिवार होकर हम टीवी के सामने कितना समय व्यक्त करते They हैं। have named one channel itself behind that called Sub TV, सबके साथ. इसके लिए
टीवी चैनल का नाम ही सब टीवी रखा है। Hallelujah. But coming together in family prayer is somewhat, impossible TV, because that's become an impossible event. लेकिन प्रार्थना के लिए पारिवारिक होकर हम साथ में आने के लिए वो एक असंभव बात हो चुकी है। This is a commitment to God as a child of God. ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर के और हम परमेश्वर के बच्चे होने के कारण। Coming together as a family once a day at least to pray together. साथ में आना परिवार होकर परमेश्वर के सम्मुख में। With the children. बच्चों के साथ। With everyone having a responsibility. सबको एक रिस्पांसिबिलिटी होकर। Family prayer is not when 5 people sit and only one man opens his mouth, prays, and everyone says amen and goes. पारिवारिक प्रार्थना ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मनुष्य अपना मुंह खोलता है और दूसरे सब बैठकर सुनते हैं। Family prayer is a time when everyone has a responsibility. पारिवारिक प्रार्थना ऐसा है जब सबको एक रिस्पांसिबिलिटी है। Everyone contributes. सब लोग अपना दान देते हैं। What happens when we pray together as a family? क्या होता है जब हम परिवार होकर प्रार्थना करते हैं? We grow together as a family. हम परिवार होकर बढ़ते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are blessed together as a family. हम आशीष परिवार होकर पाते हैं। Now, family is a network, or it is a setup that God has created. परिवार एक ऐसी बात है जो परमेश्वर ने कार्य किया है। When you look at the Bible in the Old Testament, हम जब पुराने नियम को देखते हैं, when you read the book of Genesis, जब उत्पत्ति की किताब the को Bible says He made them man and women. तो पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री बनाया। He took Eve out of Adam. उन्होंने हव्वा को आदम के बोझ से निकाला। And He took her to Adam and said, "This is your wife." और उन्होंने हव्वा को आदम के पास ले जाकर कहा, ये तुम्हारी पत्नी है। He made them as a family. उन्होंने उन्हें एक परिवार होकर बनाया। Family is a God-ordained institution. परिवार जो है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन है। Hallelujah. A man and a woman coming together and living together is an institution ordained by God. एक मनुष्य और एक स्त्री साथ में आकर रहना एक परमेश्वर के द्वारा कार्य किया गया एक कार्य है। A family is only complete when they are together. परिवार कंप्लीट होता है जब वो साथ में आते हैं। When they are together, they are now complete. जब वो साथ में रहते हैं तो वो पूरा होता है। Now, blessings also come when you're complete. आशीष भी तब आता है जब वो पूरा होता है। Brother Rajesh has just come, from south this morning, and he's just rushed back. I really appreciate that. Blessings also come together when we are complete as a family. और आशीर्वाद तब आते हैं जब हम परिवार के स्वरूप में एक पूर्णता से होते हैं। Because God created us to be complete. क्योंकि परमेश्वर हमें इस प्रकार से योजना बनाया कि हम पूर्णता से एक रहें। Now, when man and women were complete, और जब स्त्री और पुरुष एक पूर्णता से थे, God blessed them. परमेश्वर उनको आशीर्वादित किया। Same system even today. और वही बात आज तक भी वैसी ही बात है। When we are complete, जब हम पूर्णता के होते हैं, blessings come and blessings stay. तो आशीर्वाद आते हैं और आशीर्वाद ठहरे रहते हैं। When we are incomplete, और जब हम अधूरे रहते हैं, blessings don't come तो आशीर्वाद नहीं आते and nothing stays. और कुछ भी ठहर भी नहीं जाता। That is why complete family prayers are और important. इसलिए पूर्णता की पारिवारिक प्रार्थना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Children are very small. और बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं। They cannot sit quietly, और वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। especially when it comes to things of closing your eyes. और विशेष तौर पर जहाँ पर जब अपनी आंखों को बंद करने का विषय आता When your है। eyes are open itself, what all mischief they do. और जब आपने आंखें खोली होती तो कितनी सारी बातों को वे करते हैं। Imagine when your eyes are closed, what all can go wrong. और जरा कल्पना कीजिए जब अपनी आंखों को आप बंद कर दे तो क्या बातें बच्चे लोग कितने हरकत करेंगे। That is why God has kept us as parents. और इसलिए परमेश्वर ने हमें माता पिता के तौर पर रखा है। Hallelujah. Hallelujah. When our daughter was small, और हमें जानते हैं कि जब हमारी बेटी छोटी थी, since the time I remember, she has always sat in our family prayer. और जब से मुझे याद है तब से वो जो है हमारी पारिवारिक प्रार्थना में हमेशा बैठी रही। Initially she used to try to move around. और पहले शुरुआत में यहाँ वहाँ वो जाने का प्रयत्न कर जाती थी। Then you should see the fatkas that will come. और उसके बाद वो देखती कि एक झापड़ उसे मिलते। Hallelujah. Hallelujah. She never gets beaten other than for prayer. और प्रार्थना को छोड़कर कभी भी उसे मारा नहीं गया है। Hallelujah. Hallelujah. Happened twice or thrice. और ये भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ है। Then she learnt a lesson. और उसके बाद एक पाठ उसने पढ़ा। Prayer time is serious time. प्रार्थना का समय बहुत ही गंभीरता का समय है। If I don't sit quietly, I'm going to cry. अगर मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी तो मुझे रोना पड़ेगा। So she preferred staying quiet for 10 minutes. और इसलिए 10 मिनट चुपचाप रहने की बात कोई वो मान लेती है। She's going to turn 5 this week.
और इस सप्ताह वो 5 उम्र की होने वाली है। And I'm telling you, she can pray much better than many of us. और मैं आपको बताऊं कि हम में से कई लोगों से बहुत ही बेहतर स्वरूप से वो प्रार्थना कर सकते Now हैं। that was our responsibility as parents. अब ये माता पिता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी रही The है। Bible says, train a child. और बाइबल बतलाती है कि अपने बच्चों को प्रशिक्षण दो। Hallelujah. हालेलुया। It does not say pray for your child, ऐसा नहीं लिखा कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो that God should change him. कि परमेश्वर उसे बदले। इसलिए No, the प्रार्थना word करो। says, you as parents, you train your child. नहीं, लेकिन वचन कहता है तुम माता पिता होने के नाते तुम अपने बच्चों को प्रशिक्षण दो। And when you train the और child, जब तुम बच्चों को प्रशिक्षण the दोगे, Bible says now the child will not walk away from it. अब बाइबल बतलाती है कि अब वो बच्चा उस बात से कभी भी हटेगा नहीं। You know, in children, और देखो बच्चों में you know, the trainable age और जो शिक्षण पाने या सिखाने का जो उम्र होता is है getting smaller as you know, as you know, days go by. और सीखने का जो उम्र होता है जैसे दिन बीतते चले जाते हैं वो सीखने का समय कम होता जाता है। 20 years back, और 20 वर्ष के पूर्व a father could hold the ear of his 25-year-old son and correct him. और एक पिता अपने 25 उम्र के लड़के के कान को वो मरोड़ कर या पकड़ कर उसे सिखा सकता था, सुधरा Today he सकता था। cannot do that even to a 10-year-old. लेकिन आज वही पिता जो है अपने 10 उम्र के बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर Because सकता, as days are going by, क्योंकि जैसे दिन बीतते चले जा the रहे हैं trainable age of children is getting smaller. और बच्चों का प्रशिक्षण पाने का जो उम्र का तकाजा है वो कम होता जा I रहा है। have one thing in my mind. और मेरे मन में एक बात है, I can train my daughter only until she's 8 years old. और मेरी बेटी को जब तक वो 8 उम्र की है तभी तक मैं उसको प्रशिक्षण दे सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Because after that she is not going to receive training. क्योंकि उसके बाद वो कभी भी शिक्षा पाने का ऐसे मनसा में नहीं If I रहेगी। tell her something, she's only going to get angry. अगर मैं उसे कुछ बात में कहूंगा तो केवल क्रोधित होगी। I can already see the signs right now. और मैं पहले इस बात का चिन्ह अभी सही देख पा रहा So the हूँ। trainable age is getting smaller. और इससे जो प्रशिक्षण पाने की उम्र है वो कम होता जा But रहा I है। have a commitment as a Christian. लेकिन मसीह होने के नाते मेरी एक वाचा है। I have a responsibility to God मेरा समर्पण है और प्रभु के प्रति मेरी ओर से एक जिम्मेदारी है that I have to train my child. कि मुझे मेरे बच्चों को प्रशिक्षण देना ही होगा। Hallelujah. A हालेलुया। lot of parents sleep for 20 years. बहुत सारे लोग जो है माता पिता 20 सालों तक सोते रहते And हैं after the child goes out of track, और उसके बाद जब बच्चा उस बात से हट जाता for है the next 30 years now they are praying. और अगले 30 सालों तक अब वे प्रार्थना करते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's not going to work. और देखिए ऐसी बातें नहीं होने So वाली। family prayer is a complete family prayer. और इसलिए पारिवारिक प्रार्थना मतलब पूर्णता का संपूर्ण परिवार के साथ The प्रार्थना eldest to the smallest और सबसे बुजुर्ग से लेकर सबसे छोटा और बच्चे तक has to learn to respect the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति का आदर देना ये उनको सीखना चाहिए। Jesus says like this, और यीशु ने इस प्रकार से कहा, where 2 or 3 जहाँ पर 2 या 3 जन gather together in my name, और मेरे नाम से जहाँ कहीं इकट्ठा there होते हैं I am there in the midst of और them. वहाँ पर मैं उनके बीच में हूँ। When you gather together in family जब prayer, आप पारिवारिक प्रार्थना में इकट्ठा होते हो, come on, Jesus is there in that place. देखिए यीशु उस स्थान पर होता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। And if Jesus is there, और अगर यीशु वहाँ पर है you're not going to sit there yawning. तो आप वहाँ पर जो है वासी देते हुए बैठ नहीं You're not सकते। going to sit there looking at your watch. When is this going to get over? अपनी घड़ियाल को देखकर अरे कब प्रार्थना खत्म होगी ऐसे देखते हुए आप नहीं बैठ Because सकते, Jesus is there. क्योंकि यीशु वहाँ पर So है। last week I spoke about commitment. और इसलिए पिछले सप्ताह मैंने आपको समर्पण के बारे में बात की। That as a believer, और विश्वासी होने के नाते if I have to pursue my inheritance, अगर मेरे मिरास को मुझे हासिल करना if है, I have to go behind and take it, अगर उससे पीछे लगते हुए उसे अगर मुझे प्राप्त करना है, first there has to be commitment in my life. और पहली बात है कि मेरे जीवन में मुझे समर्पित ऐसा रहना Second, है। I want to tell you, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Genesis chapter 12 and verse 2. उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन। We have meditated upon this verse, but I come back to it again. और इस वचन पर हमने मनन किया लेकिन दोबारा इस वचन पर आना चाहूंगा। Genesis chapter 12 verse 2. उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन। God is speaking to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा And he है says, I will make you into a great nation. और वो कहता है कि मैं तुझे महादेश बनाऊंगा, I will bless you. मैं तुझे आशीष करूंगा, I will make your name great. मैं तेरे नाम को महान और बड़ा बनाऊंगा You will be a blessing. और तू आशीर्वादित रहेगा। Listen carefully to what God is speaking to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से क्या बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। I will make you into a great nation. मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। Come on, Abraham does not have a single child. लेकिन अब्राहम को तो तब समय तो एक भी संतान नहीं था। But God is saying, I will make you into a nation. लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। He does not have blessings. और उसके पास कोई आशीर्वाद नहीं थे। He was there with his father's family. वो अपने पिता के परिवार के साथ वहां Now पर God था। is saying, leave it and go. अब परमेश्वर से कह रहा है कि इसे छोड़कर तू निकल। So everything that he had, he leaves now. और इसलिए जो भी कुछ उसके पास है वो उसे छोड़ता
होता He है, has no blessing. उसके पास कोई आशीर्वाद But नहीं। God says, I will make you into a blessing. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीर्वादित बनाऊंगा। Now understand what God is trying to do with अब Abraham. इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि प्रभु अब्राहम से क्या कर रहा है। God is making Abraham fruitful in his life. परमेश्वर अब्राहम को अपने जीवन में फलवंत बना रहा है। Till that time, Abraham was a blessing. और उस समय तक अब्राहम एक आशीर्वाद तो था, But that blessing was because of his money, लेकिन वो आशीर्वाद उसके पैसे के वजह से था, which came through his father. जो अपने पिता के द्वारा वो पैसे आए थे। His blessing was because of his position, उसके आशीर्वाद जो है उसकी पदवी के स्वरूप के अनुसार था, which again came because of his family. दोबारा अपने परिवार की वजह से वो आशीर्वाद आए His थे। blessing was because of his education. उसके आशीर्वाद उसकी पढ़ाई की वजह से थी। Now history says that Abraham's father अब इतिहास बताता है कि अब्राहम का पिता was a man who could look at the sun, moon, stars, at the planets, and he could tell the future. और ऐसे वो अब्राहम का पिता था जो सूरज, चंद्रमा और तारों और गणों को देखते हुए, वो ग्रहों को देखते हुए सारी बातों को वो बता सकता था। And Abraham being his child, और अब्राहम जो उसका बेटा था, well, it was obvious that Abraham was getting trained in the skills of his father. और इसमें कोई शक नहीं कि अब्राहम अपने पिता के उस कला में जो है प्रशिक्षण पा रहा So था। Abraham was being educated in the sun, moon, and stars. और अब्राहम भी जो है सूरज, चंद्रमा और तारों के विषय में बहुत ही वो पढ़ रहा था। And I'm telling you, that profession even today is considered to be quite high. और मैं आपको बताऊं कि वो जो पेशा है आज भी वो बहुत ही उच्च स्तर का माना If जाता you है। talk about astronomers, अगर आप एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बात करें, people who study the sun, moons, the stars, and their movements, और ऐसे लोग जो सूरज, चंद्रमा और सारे ग्रहों और उसके जो हालचाल के बारे में जो अध्ययन करते हैं, even today that's considered as a very high profession. और आज भी उस बात को बहुत ही बड़े ऊंचे ओहदे के पेशा ऐसा कहते हैं। Imagine in the days of Abraham. अब्राहम के कालों के जमानों के बारे में जरा कल्पना करें। Hallelujah. हालेलुया। People might have been saying like this. लोगों ने ऐसा बोला होगा, If you have to become anything in your life, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी अगर बनना you है, must become something like Abraham. तो अब्राहम के जैसे कुछ बनना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Highly educated. और बहुत ही ऊंचे पद का पढ़ा Look लिखा, at his family. और उसके परिवार की ओर Look देखो, at his wealth. उसकी धन संपत्ति को Look at देखो, how much he knows. और कितनी बातों को वो जानता है, ज्ञान He को knows देखो, about those stars. और उन तारों के बारे में वो जानता Or है, he knows about how they move. और कैसे वे हिलते हैं उसके बारे में वो जानता And है, he can tell you about them. और उसके बारे में वो तुम्हें बता सकता So है। Abraham was blessed. और अब्राहम पहले आशीर्वादित था, But God removed him from that blessing. लेकिन परमेश्वर उस आशीर्वाद से उसे बाहर निकाला, And he said, I will now make you a और blessing. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीर्वादित बनाऊंगा। Hallelujah. 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 Everyone likes to be successful in life. हर एक जन अपनी जिंदगी में सफल होना पसंद करता है, Everyone likes to be fruitful in life. और हर एक जन अपनी जिंदगी में फलवंत रहना चाहता But है, most of the time we like to be like the first Abraham. लेकिन ज्यादातर समय हम पहले अब्राहम, First Abraham. और ज्यादातर हम सभी लोग पहले अब्राहम के जैसे बनना पसंद करते The हैं, first type of Abraham. और पहले के प्रकार का जो अब्राहम था वैसे, Prosperous because of his family. और अपने परिवार के द्वारा उन्नति पाया हुआ, Prosperous because of his education. और अपनी पढ़ाई की वजह से उन्नति पाया हुआ, Prosperous because of his wealth. और अपनी धन संपत्ति की वजह से उन्नति पाया You हुआ। can hear some people talk. और आप सुन सकते हो कि कुछ लोग ऐसा बोलते They हैं, always keep talking about what they have. हमेशा उनके पास जो है उसकी के बारे में बात करते Oh, you रहते know, हैं। I have this. अरे आप जानते हो मेरे पास ये Oh, है, you know, I have that. आप जानते हो मेरे पास वो है, Oh, you know, we have this. आप जानते हो मैं हमारे पास ये Oh, you है, know, my father's family, we have this. आप जानते हो मेरे पिता के परिवार में ऐसी ऐसी बातें हैं, We have drawn our blessings out of what we have. और हमने हमारे आशीर्वाद को जो हमारे पास है उसमें से उस आशीर्वादों को निकाला है। God looked at Abraham and said, परमेश्वर ने अब्राहम की ओर देखकर कहा, if you are happy with that blessing, you stay with that blessing. अगर उस आशीर्वाद के साथ तू खुश है तो उसी आशीर्वाद के साथ तू रह, But if you want greater लेकिन blessings, अगर तुझे और भी बड़ा आशीर्वाद चाहिए then I need to bless you. तो मैं तुझे आशीर्वाद करना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. If we need greater blessings in our life, अगर हमारी जिंदगी में बहुत ही महान आशीर्वाद हमें चाहिए, then we need to let God speak to us what He spoke to तो Abraham. हमें ऐसा होना देना है कि परमेश्वर ने जो अब्राहम से बातें की वो परमेश्वर हमसे बातें करने हमें प्रभु को What देना। did God speak to Abraham? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या He कहा? went into Abraham's ear अब्राहम के कान की ओर प्रभु गया, and He said, Abraham, और वो परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, I will make you a blessing. मैं तुझे आशीर्वादित बनाऊंगा, I will make you a great nation. मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, I will make your name great. मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, I will make you fruitful. और मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Something that comes from God. ऐसी कुछ बात जो परमेश्वर की ओर से आई है। Hallelujah. हालेलुया। We are all manufactured to be fruitful. और हम सभी जन जो है फलवंत होने के लिए बनाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Anyone and everyone can be in some way useful and fruitful. और हर एक जन और हर कोई जो है किसी न किसी
was completely disabled but could only use the legs. So that person now has become a big painter because he uses brushes on his legs and he's painting. और कुछ महीनों से पहले मैंने टीवी में, टेलीविजन में, समाचार में मैंने देखा, उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति था जिसके केवल दोनों पैर थे और वो व्यक्ति जो है वो इतना काबिल बन गया था कि अपने पैर की उंगली से वो पेंटिंग बहुत ही सुंदरता से बना रहा And था। those paintings painted by his leg now is sold for many thousand rupees. अब वो जो पेंटिंग उसके पांव के द्वारा जो बनाए गए थे वो कई लाखों यानी बहुत ही बड़े रकम से बेचे जा रहे थे। Anyone, और इसलिए कोई भी whoever और जो कोई हो can be useful in some way. और हर एक जन किसी न किसी प्रकार से उपयोग में जरूर आता है, Because we are manufactured to be useful. क्योंकि हम उपयोगी होने के लिए ही बनाए गए हैं। But this usefulness लेकिन ये जो उपयोगिता है, is not the usefulness that God is talking लेकिन about. ये जो उपयुक्तता है वो परमेश्वर जो चाह बोल रहा है उस प्रकार की उपयोग की बात The नहीं है। blessing that God speaks about परमेश्वर जिस आशीर्वाद के बारे में बोल रहा is a है different kind of वो blessing. अलग ही प्रकार का आशीर्वाद है। World blesses you, संसार आपको आशीर्वाद करता but है it does not protect you. लेकिन आपको सुरक्षा नहीं देता। The world gives you wealth, संसार आपको धन संपत्ति देता but है it does not give you joy out of that wealth. लेकिन उस धन संपत्ति में से आपको खुशी और आनंद नहीं देता। If you read the book of Proverbs, अगर आप नीति वचन को पढ़ोगे the Bible says more wealth और बाइबल बतलाती है ज्यादा धन is more sleepless nights. और इसलिए ज्यादा जो है बेचैनी से भरे हुए और वो जो है नींद नहीं ऐसे रात से भरे हुए बात है। Hallelujah. Hallelujah. Now you should understand the Bible was written in times when you do not have banks. और देखिए बाइबल उस जमाने में लिखी गई जिस जमाने में कोई बैंक नहीं थे। Bible was written in times when you do not have Godrej, cupboards and Godrej, safes and all that. और बाइबल जो है उस जमाने में लिखी गई, उस जमाने में कोई गोदरेज का लॉकर या कबर्ड या इस प्रकार से कोई बात नहीं So थी। people, when they got some wealth, और इसलिए लोगों को जब धन संपत्ति उनको मिलती they है were trying to hide it in their house. और वे अपने घरों पर कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयत्न करते Some हैं। people are digging the ground and hiding it there. और कुछ लोग नीचे जमीन पर खोदते और वहां पर छिपा कर रखते Some हैं। people were trying to keep it under their head, under the pillow. और कुछ लोग अपने सर के नीचे, तकिए के नीचे जा रखने का Some प्रयत्न people were करते हैं। trying to keep it inside the hole in the wall. और कुछ लोग जो है दीवार के अंदर जो छेद है उस छेद में रखने का So प्रयत्न people करते were hiding their wealth. हैं। और लोग अपनी धन संपत्ति को That's what the छिपाते हैं। Bible says. और यही बात बाइबल बतलाती The है। more wealth in your house, और जितना ज्यादा धन आपके घर में you're होगा going to have sleepless nights. और उतनी ज्यादा आपके रात के समय नींद नहीं आएगी। Because you're wondering, will the thief come and find out? और क्योंकि आप ऐसा सोचोगे अरे चोर आएगा और वो उसे पा लेगा। So the wealth that this world gives और इसलिए धन संपत्ति ये संसार जो देता is है a different kind of wealth. और ये अलग ही प्रकार का धन संपत्ति But है। what God gives लेकिन परमेश्वर जो देता is है the blessing that brings peace. वो ऐसा आशीर्वाद है जो शांति लाता है। Is the wealth that brings peace of mind. ये ऐसी धन संपत्ति जो मन की शांति लाता है। Is luxury that takes you to heaven. और ये ऐसी औदा, ऐसा औदा और ऐसी भरपूरी जो आपको स्वर्ग में ले जाती That है। is a blessing that God now wanted to give और Abraham. ये ऐसा आशीर्वाद है जो अब परमेश्वर अब्राहम को देना चाह रहा When था। we speak about fruitfulness in church, जब कलीसिया में फलवंतता की बात के बारे में हम बोलते हैं people immediately think of what I have to do for God. और लोग तुरंत सोचते हैं अरे मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना होगा। Pastor is speaking about fruitfulness. अरे पास्टर जो फलवंतता के बारे में बात कर रहे हैं That means I have to do something. यानी मुझे कुछ करना होगा। But if you study the Bible, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे, going back to what God said Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा उसके और में जाते हुए God said, I will do this for you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए ऐसा And करूंगा because I do this for you, और क्योंकि मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा your life will become a blessing. और तेरा जीवन आशीर्वादित होगा। Understand this carefully. और इस बात को ध्यानपूर्वक समझिए। God was making Abraham only as a channel of his blessing. परमेश्वर केवल अपने आशीर्वाद का जरिया जो है अब्राहम को बना रहा He था was not making Abraham a manufacturer of fruitfulness. और परमेश्वर अब्राहम को जो है फलवंतता का बनाने वाला नहीं कर He रहा didn't था say, Abraham, you be fruitful. और उसने ऐसा नहीं कहा कि अब्राहम तू फलवंत हो जा, I will make you fruitful. मैं तुझे फलवंत करूंगा। That means you are just going to be a channel. यानी तू केवल एक जरिया होगा I will work in and through you. और मैं तेरे द्वारा और तेरे अंदर और तेरे द्वारा कार्य As करूंगा। a result, और उसका परिणाम स्वरूप what will happen is this, और क्या होगा ये वो होगा that you will at the end of the day be fruitful. कि At the end of the day, you will be fruitful. और अंत में ये देखा जाएगा कि तू फलवंत होगा। That is how God wants to bless our lives. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को आशीर्वादित करना चाहता He है does not want us to manufacture our blessings. और वो नहीं चाहता कि हम खुद हमारे आशीर्वाद को हम बनाएं। We can never do that. हम ऐसा कर भी नहीं But सकते He हैं। wants us to become a channel. लेकिन वो चाहता है कि हम एक जरिया
जरिया बने, He wants us to become a channel वो चाहता है कि हम एक जरिया बने, so that He can now work in and through us, so that at the end of the day we become a blessing. ताकि वो हमारे अंदर और हमारे द्वारा वो कार्य करे, ताकि अंत में देखा जाए तो हमारे द्वारा वो फलवंतता को ले आए। When we get up every morning, जब हम अति भोर के समय रोज हम जब जाग उठते when हैं, we get ready for the day's work, जब हम दिन भर के काम के लिए हम तैयार होते हैं, when we get ready to go and achieve something that day, और उस दिन में कुछ तो भी हासिल करने के लिए जब हम तैयार होकर this निकलते should हैं, be the first thoughts in our mind. और हमारे मन में सबसे प्रथम यही विचार रहना That है Lord, I offer myself as a channel to you today. कि परमेश्वर मैं आज अपने आप को जरिया होकर मैं अपने आप को सौंपता हूँ, Because I know it is not my effort that will make me successful. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी मेहनत और कोशिश नहीं कि मुझे सफलता बनाएगी, I cannot work to be a blessing. और आशीर्वाद होने के लिए मैं काम नहीं कर सकता, But I can offer myself so that you can work in and through me to make my life a लेकिन blessing. मैं अपने आप को सौंप सकता हूँ प्रभु, ताकि आप मेरे अंदर और मेरे जीवन के द्वारा फलवंत होने के लिए कार्य कर Are you सकें। getting what I'm saying this morning? मैं सुबह का समय जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, God is not looking at your effort, परमेश्वर आपकी कोशिश और मेहनत को नहीं देखता, but He is looking at your effortlessness. लेकिन आपकी मेहनत रहित बातों को वो देखता You है। know, if you've learned swimming the hard way, देखिए आप बहुत ही कठिनता से अगर वो तैरने का प्रयत्न सीखते हो, I learned it the hard way. और मैं बहुत ही कठिनता से मैंने तैरना When सीखा, I was in school, my football coach called the football team. और जब मैं स्कूल में था फुटबॉल का जो कोच था उसने फुटबॉल टीम को बुलाया, So he said, we are all going to go out today. और उन्होंने कहा कि आज हम सभी लोग बाहर जाने We're वाले going हैं, to go into the fields. और हम जो है हम खेती में जाने वाले So we हैं। were all happy. हम बहुत ही खुश थे, We took all our bags and we went trekking into the fields. और जो हम बहुत ही बैग हमने लिया, अब हमारे बैग को लिया और हम उस खेती की ओर जगह की ओर गए। And if you see those fields, you know, there are those huge rectangular wells in the fields. और आप देखोगे खेती में बड़े बहुत ही चौकोनी ऐसे जो है कुएं होते हैं, And those wells don't have walls, you know, it's with the ground. और वो ऐसे कुएं होते हैं जिनके दीवार नहीं होती है, जो है सीधे समतल जमीन के साथ वो कुएं होते So हैं। he said, how many of you know to swim? और इसलिए उन्होंने पूछा कि आप में से कितने जन तैरना जानते हैं, 5-6 boys lifted up और their hands. 5-6 लड़कों ने अपने हाथों को पीछे से So उठाया, he said, okay, get ready and jump in. और उन्होंने कहा ठीक है तैयार हो जाओ और कूद पड़ो। So he said, people who don't know to swim, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को तैरना नहीं आता, what you do is you sit down here on the side और तुम लोग क्या करो, ये बगल में किनारे पर बैठ जाओ and you hold this rope. और ये रस्सी को पकड़े रहो। So we other 5 of us, 6 of us, we were sitting holding rope there. और इसलिए हम 5-6 लोग हम जो है वो किनारे पर उस रस्सी को पकड़े हुए बैठे थे, We did not even know when he pushed us and we fell inside the और water. हमको ये पता कभी उन्होंने हमें ढकेला और कब हम पानी के अंदर उस कुएं में गिरे हमें पता भी नहीं And चला। as we were going down, और जैसे हम नीचे की ओर जा there रहे is थे, only one voice we heard. केवल एक ही आवाज हमने सुनी, That voice said like this, और उस आवाज को ऐसा आई आवाज, don't struggle, just stay still. और हाथ पैर मत मारो, केवल स्तब्ध रहो। Hallelujah. हालेलुया। But when you go into the water without knowing swimming, you will know what I'm talking about. लेकिन जब आपको तैरना नहीं आता और पानी के अंदर आप जा रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ You में will आता है। beat your hands and your legs so fast that if there's anyone next to you, I'm sure you'll get a good beating. आप इतने जोर से हाथ पैर मारोगे तो मैं दृढ़ता से जानता हूँ अगर आपके बगल में कोई होगा तो उसे बराबर पता And the चलेगा। faster you beat your hand and leg, और जितना ज्यादा तेजी से आप अपने हाथ और पैर को मारते हो, do you know that is how faster you start going inside? आप जानते हो उतनी तेजी से आप पानी के अंदर जाते रहते हो। Hallelujah. हालेलुया। And then comes a moment और उसके बाद ऐसी घटना ऐसा क्षण आता है when you start saying your last prayers. जब आप अपनी अंतिम प्रार्थना बोलते हो, Father, into your hands I commit my spirit. पिता तेरे हाथ में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। I hope I've been a good boy. I hope I've been a good boy. और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का रहा हूँ। Please take me to heaven, Lord, and come और in. प्रभु मैं बहुत ही मुझे कृपा कर स्वर्ग में ले लो, मैं आ रहा हूँ। You almost start seeing angels coming down to you. आप ऐसा मानो ऐसा देख ही पाते कि स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं, Suddenly you're tired and your hands legs just stop. और अचानक आप बहुत ही थक जाते हैं और आपके हाथ ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं। Then you see that now your neck is above the water. और उसके बाद आप देखते हो कि आपकी गर्दन जो है पानी के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। The same is even in our spiritual life. और यही बात हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। Hallelujah. Hallelujah. We are so busy beating our hands and legs. हम हमारे हाथ और पैरों को मारने में इतने व्यस्त रहते The हैं। word of God says that I will be a blessing. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आशीर्वादित रहूंगा। So we are so busy beating our hands and legs to prove that the word of God is right. और इसलिए हम इतना हाथ पैर मारकर इतना व्यस्त रहते हैं इस बात को बताने के लिए कि प्रभु का वचन सत्य है। We are trying to prove that the word is right. और हम ऐसा करने का प्रयत्न करते दर्शाते हैं कि वो वचन सच्चा है। We want to prove to ourselves that God's promise is true. हम अपने आप को साबित करने का प्रयत्न सच्चा है। No, that is God's work. अरे नहीं, ये तो परमेश्वर का काम है। Proving His word being true is God's responsibility. उसका वचन जो है सत्य है, इस बात को साबित करना ये परमेश्वर की जिम्मेदारी
we remain in Him जब हम उसमें बने रहेंगे and His Word. और उसका वचन, Come on, everyone say His Word. सब जन बोलिए उसका वचन, Say His Word. बोलिए उसका वचन, His Word remains in me. उसका वचन मुझ में बना रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. It's a two-way remaining. और ये दो तरीके का बने रहने की बात I है। remain in Him मैं उसमें बना रहता and हूँ His Word in me. और उसका वचन मुझ में बना When रहता this है। relationship is established, जब ये रिश्ता कायम होगा the Bible says now you will be fruitful. और बाइबल बताती है कि अब तुम फलवंत होंगे Now you will be fruitful. और अब तुम फलवंत रहोगे। What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? That in addition to your work, कि आपके काम के साथ there साथ is an extra power that is working with you. एक ज्यादा सामर्थ्य जो आपके साथ काम कर रही In है। addition to your efforts, आपकी कोशिश और मेहनत के साथ there साथ is an extra effort that is coming with you. एक और भी ज्यादा मेहनत आपके साथ आ रही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. In addition to your intelligence, और आपकी बुद्धि और ज्ञान के साथ there साथ is the intelligence of the Holy Spirit working in you. और ऐसे पवित्र आत्मा की बुद्धि और भी वो जोड़ते हुए आपके साथ काम कर रही है। Hallelujah. Hallelujah. This is called being fruitful. और इसे कहते हैं फलवंत होना। Last week I happened to meet one of my college friends back from my Karunya days. We met after 9 years. और पिछले सप्ताह कारुण्या के जो कॉलेज में मेरे जो पुराना मित्र हैं 9 साल के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई। And we were good friends. हम बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं। For 4 years we've traveled to so many places ministering for God. और 4 साल तक परमेश्वर की सेवकाई करते हुए कई स्थानों में हमने यात्रा की Our है। attendance was always less than 50%. और हमारे अटेंडेंस जो है 50% से भी कम रहते थे। Every time before the semester exams, और हर एक बार सेमेस्टर एग्जाम के पहले about 4 or 5 of us will be in front of the dean's office. और 4-5 जन हमेशा हम डीन ऑफिसर के सामने हम रहते And we थे। used to say, sir, please, we don't have enough attendance. और हम कहते थे सर जी कृपा कीजिए हमारे पास ज्यादा अटेंडेंस नहीं है। And every time we used to get the increase, that was not a problem. और हर बार हमें इंक्रीज मिलता बढ़ती मिल जाती थी, इसमें कोई समस्या Because नहीं they है। knew what we were doing. क्योंकि वो जानते थे कि हम क्या करते थे। In my 4 years of college, और मेरी 4 साल की कॉलेज के I would दरमियान have attended college very little. और मैंने बहुत ही कम समय का कॉलेज अटेंड But I'm किया। telling you, I have not even failed one paper. लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक भी पेपर में मैं फेल नहीं हुआ। Hallelujah. हालेलुया। My engineering books. देखिए मेरे इंजीनियरिंग के जो किताब थे, We've got few people from Karunya, so you know Ukadam very well. You know where you buy your books from. यहाँ से कारुण्या से कुछ लोग यहाँ पर है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ से हम किताबें There's खरीदते a थे। place called Ukadam. और उकड़म ऐसा एक स्थान का नाम है। So I used to go 1 week before my exam. और मेरे एग्जाम के एक सप्ताह के पहले मैं And I वहाँ used to जाता buy all those engineering books for 6 subjects. और 6 विषय के लिए सारे इंजीनियरिंग के मैं सारे किताबों को ले आता। It used to cost about $4,000 I think. और 4,000 रुपए कुछ तकरीबन लगते And हैं। I used to tell that man, और मैं उस व्यक्ति से कहता exactly in 2 weeks, और बराबर 2 सप्ताह के I'm बाद going to come back and give you all these books. मैं वापस आकर इन सारी किताबों को तुम्हें दे दूंगा। And out of 4,000, और 4,000 में से he used to minus 1,000 and give me back 3,000. और वो 1,000 रुपए ले लेता था और 3,000 दे देता That is था। how I studied for my engineering. और इस प्रकार से मैंने मेरी इंजीनियरिंग पढ़ी। Hallelujah. हालेलुया। But I passed, no problem. लेकिन मैं पास हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं What थी। I'm trying to convey is this. और मैं किस बात को यहाँ पर आपको बोधित करना चाहता हूँ। It doesn't mean that don't study. और इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ना करो। Before that exam for 2 weeks, I won't even sleep for 1 hour. देखिए उस एग्जाम के 2 सप्ताह तक मैं तो सोता भी नहीं था। I used to get like swollen. और मेरी आंखें इतने सूज जाती That थी। is how we passed the exam. और इस प्रकार से हमने अपने एग्जाम में पास But हुए। what I'm trying to tell you is this. लेकिन मैं आपको जो बताने का प्रयत्न कर In रहा हूँ ये our है, weakness, हमारी कमजोरियों में there is a strength that is available to work with us. ये ऐसा एक बल है जो हमारे साथ काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। That in our times of difficulty, कि हमारी कठिनाइयों के समय में there is God's power that is willing to work along with us. ऐसा परमेश्वर का सामर्थ है जो हमारे साथ काम कर रहा होता है। With our intelligence, हमारी बुद्धि के साथ there is God's wisdom that is willing to work alongside with us. परमेश्वर की बुद्धि जो हमारे साथ साथ हमारे साथ वो काम करती We है। need to recognize God's help वो परमेश्वर की मदद को हमें पहचानना in चाहिए। every day of our lives. हमारे जिंदगी के हर एक दिन We में have to recognize the available help of God. परमेश्वर की उपलब्ध जो मदद है उसको हम जानना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Ladies, when you're cooking, महिलाएं जब आप खाना पकाते हो, do you know God's help is available to help you cook well? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर की मदद वहाँ पर अच्छा भोजन पकाने के लिए आपके साथ है। Children who are studying, बच्चे जो पढ़ाई करते do you हैं, know God's help is available for you to improve your handwriting? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर की मदद वहाँ पर उपलब्ध है कि आपके हस्ताक्षर को आप बहुत ही सुधारें। People in college, और लोग ऐसे जो कॉलेज में do जाते you हैं, know God's help is available to help you do your projects well? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर की मदद उपलब्ध है कि आपके प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे स्वरूप से आप करें। This is what helps you now be fruitful in your life. और ये ऐसी मदद है जो आपको आपके जीवन में और भी सफलता ले आएगी। Fruitfulness
for God. फलवंतता है ये वो बात नहीं जो मैं परमेश्वर के लिए जो कर सकता हूँ। Fruitfulness is what God wants to do through me. फलवंतता उसे कहते हैं जो परमेश्वर मेरे द्वारा करना चाहता है। There's a difference in these two. और इन दोनों बातों में फर्क है। It's not what I can do for him. मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ ये वो बात No, नहीं it है। is what he wants to do through me. वो मेरे द्वारा जो करना चाहता है ये वो बात है। When we identify this, जब इन बातों को हम पहचानने we लगेंगे, will start being successful in every area of our life. हमारे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में हम सफल होते The जाएंगे। word of God in Psalms 1 says like this. भजन संहिता इसका पहले भजन में प्रभु का वचन कहता He है, will be like a tree planted by the streams of waters, वो बहते नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान वो होगा। that bears forth his fruit in season, वो अपने ही ऋतु में फल लाता है whose leaves don't wither, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, and whatever he does shall prosper. और जो भी कुछ वो करे उसमें वो सफल होता है। This is a verse very practical for your life and my life. और ये वचन जो है आपकी जिंदगी, आपके जीवन, मेरे जीवन में बहुत ही वास्तविक है। When we are planted in God, जब हम परमेश्वर में बोए जाते हैं, रोपे जाते when हैं, we are committed to God, जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, when we are established in the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते, स्थिर स्थापित होते just हैं। look at your last week. आपके पिछले सप्ताह को जरा And देखिए I want to ask you, tell yourself truthfully, और मैं आपको पूछना चाहता हूँ अपने आप से आप ईमानदारी से how बताइए much time did you actually spend on the Word of God? और परमेश्वर के वचन के साथ आप कितना समय आपने बिताया। I keep telling this again and again. और मैं दोबारा दोबारा इस बात को मैं बताते रहता God's हूँ। blessings only start from His Word. परमेश्वर का आशीर्वाद केवल उसके वचन ही से और शुरुआत Do होता you है। want your life to change? आप चाहते हो कि आपका जीवन बदल जाए? Pick up a Bible. आपने बाइबल को ले ले। Hallelujah. Hallelujah. You want your business to increase? आप चाहते हो कि आपका व्यवसाय बढ़े? Pick up your Bible. आपके पवित्र शास्त्र को ले ले। You want your children to prosper in their education? आप चाहते हो कि आपके बच्चे उनकी पढ़ाई में वो बहुत ही उन्नति पाए Give them a Bible. और उनको बाइबल दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is where all the divine help is available. और वहीं पर तो सारा दैविक मदद और सहायता उपलब्ध है। That Bible, how do you use it? और उस बाइबल को कैसे आप उपयोग में लाते हो? Not to keep it under your pillow and sleep. आपके तकिए के नीचे रखकर सोने के लिए नहीं। When you study in hostel, you come across so weird things. और जब आप हॉस्टल में माफ कीजिए, जब आप हॉस्टल में पढ़ाई करते हो बहुत ही अजीब हरकतें, अजीब बातों का आप सामना करते I've stayed in हो। hostel, so I know that. और मैं हॉस्टल में मैं रहा हूँ इसलिए मैं ये बात जानता I हूँ। find some of these extra spiritual people, और मैं एक्स्ट्रा ज्यादा आत्मिक जनों को मैंने देखा है। they have their books kept on the table, और उनके पास उनकी किताबें हैं जो टेबल पर रखी हुई and हैं। above all that only they'll keep the Bible there. और उन सारे किताबों के ऊपर ही वो बाइबल If I रखेंगे। keep my Bible on my books, अगर मैं अपने बाइबल को अपने किताबों के ऊपर I रखूंगा will be blessed in my studies. तो मेरी पढ़ाई में मैं आशीर्वादित रहूंगा। But they will not open the Bible and read, लेकिन वे बाइबल खोलकर बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, because they are so busy reading the books. क्योंकि सारे किताबों को पढ़ने में इतने व्यस्त हो रहते हैं। Pastor, exam is coming. I have no time for Bible. अरे पासवान जी, क्या वो परीक्षा बहुत ही नजदीक है, But मुझे बाइबल पढ़ने I का will keep समय the Bible on my book. लेकिन मैं अपने बाइबल को अपनी किताबों के ऊपर रखूंगा। Some people, I did not read Bible today, और कुछ लोग वो कहते हैं अरे मैंने अपने बाइबल आज नहीं पढ़ी, so let me keep it under the pillow. और इसलिए मैं तकिए के नीचे रखूंगा। Oh, I get bad dreams in the night. अरे रात के समय पूरा सपना मुझे आता है। Keep Bible under your head. अरे आपके सर के नीचे बाइबल रखो। Oh, he has evil spirit. अरे इसके अंदर अशुद्ध आत्मा है। Hit him with the Bible. अरे बाइबल से इसे मारो। This is not a magician's band, देखिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। The book is meaningless, और किताब अपने आप में कुछ भी मतलब नहीं है। but the words in this book are priceless. लेकिन इस किताब में जो शब्द है इसकी कोई कीमत यानी बहुत ही कीमती है। Hallelujah. हालेलुया। The book in itself is meaningless, और ये किताब जो है अपने आप में कोई इसका मतलब नहीं है। but the words in this book are priceless. लेकिन इसमें जो शब्द है, जो अक्षर है, उसमें बहुत ही कीमत है। इसकी कीमत नहीं लगा What सकते। makes us fruitful? और कौन सी बात हमें फलवंत बनाते हैं? The words in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में जो वचन है वो What can give us an extra wisdom? हमें और भी ज्यादा ज्ञान और बुद्धि कौन क्या बात दे सकते What हैं? can give us an extra help in our business? कौन सी बात हमें हमारे व्यवसाय में और भी ज्यादा उन्नति दिला सकते हैं? What can give us an extra help in our studies? और हमारी पढ़ाई में और भी ज्यादा उन्नति हमें कौन दिला सकता What है? can give us an extra power in our work? और हमारे काम में और भी ज्यादा सामर्थ हमें कौन दे सकता It's है? the Word of God that is inside you. ये परमेश्वर का वचन है जो आपके अंदर है। It's the Word of God that remains in you. जो ये परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर बना रहता है। So Jesus said very clearly, यीशु ने बहुत ही सफाई से कहा, if you remain in me, अगर तुम मुझ में बने रहो, it is not getting up every morning and say hi Jesus and 5 minutes later say bye Jesus and go out of the house. और ऐसा नहीं कि अब सुबह का समय उठ जाए और यीशु का कहें हाय
बाय जीसस और 5 मिनट के बाद यीशु को कहें बाय जीसस और घर के बाहर। No, it is remaining with Jesus throughout the day. ये ऐसा नहीं, पूरे दिन भर यीशु के साथ बने रहना। That is why he says, remain in me. और इसलिए वो कहता है कि मुझ में बने रहो। And then he says, if my words remain in you. और फिर वो कहता है कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे। What did you read yesterday morning in the Bible? और कल सुबह के समय आपने बाइबल में कौन सी बात पढ़ी? Oh, Pastor, I read something. अरे पास्टर जी मैंने कुछ तो पढ़ा। What did you read day before? और परसों के दिन क्या पढ़ा? What did you read before that? और उसके पहले आपने क्या पढ़ा? We don't remember. और हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। What has happened? क्या होता? The word has not remained. वचन जो है बना नहीं रहता। The words came, वचन आया went out. और निकल गया। It does not remain. वो बना नहीं रहा। Because it is not remaining. और वो ठहरा हुआ वचन नहीं है इसलिए। Even though now we know the Bible, अभी हम बाइबल को जानते हैं उसके but बावजूद still those blessings are not there in our life. फिर भी वो आशीर्वाद हमारे जिंदगी में अभी भी नहीं है। Because the word does not remain. क्योंकि वचन बना हुआ नहीं है। Bible promises so many blessings, बाइबल बहुत सारे वायदों का वायदा करता है, but it does not come into our life. लेकिन वो हमारी जिंदगी में नहीं आता। Why? क्यों? The words does not remain. क्योंकि वचन बना नहीं रहता। We have to make an effort for the word of God to remain in us. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बने रहने के लिए हमें वो उस कोशिश और उस मेहनत को करना है। Jesus looked at the little children यीशु ने छोटे बच्चों की ओर and देखा he said this, और उसने इस प्रकार से कहा, unless you become like a little child, जब तक तुम इस छोटे बच्चों के जैसे नहीं you बनते, cannot enter the kingdom of heaven. तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर Do you सकते। know why he used that example? आप जानते हो ऐसा उदाहरण यीशु ने क्यों लिया? See our Sunday school. हमारे संडे स्कूल को देखिए। The child is made to memorize one verse every Sunday. और हर एक बच्चे को जो है हर एक रविवार में एक वचन जो है मनन याद करने के लिए बताया So जाता at है। least in a year, और इसलिए कम से कम पूरे वर्ष भर they में have learned at least 50 verses. कम से कम वर्ष भर में 50 वचन तो उन्होंने जो है याद कर लिए हैं। They know it by heart. और पूर्णता से मनन उनका याद कर लिया I है। want to challenge someone here right now. और यहाँ पर इस समय मैं किसी को चुनौती देना How चाहता many हूँ। believers are here right now? Matured believers. यहाँ पर ऐसे कितने विश्वासी पूर्णता के प्रौढ़ ऐसे विश्वासी Been in Christ for so long. और मसीह में बहुत लंबे समय तक आप Who can right now stand up and tell me 50 verses that you have ever learned in your whole life? और जो इस समय खड़ा होकर पूरी जिंदगी में आपने याद किया है, अगर 50 वचन यहाँ पर कोई बता सकता है? Psalms 23, come on, 6 verses will come there. भजन संहिता 23 और जब वहाँ वहीं पर 6 वचन आ जाएंगे। Psalms 104, the first 2 verses will come there. और भजन No, संहिता 103, Psalms 103, the भजन first 2 संहिता verses. 103 में 2 वचन आ जाते हैं। You know, so we've got like 8 verses now. और अब हमारे पास 8 वचन हैं। Then what? John 3:16, we've got यूहन्ना- we've got one more. यूहन्ना 3 का 16 और एक वचन आ Then गया। Matthew 6:33, we've got one more. और मत्ती 3 का 33 और एक वचन आ गया। That is why some people are saying, what is that Matthew 6:33? और कुछ लोग बोला रहे ये कौन सा वचन है मत्ती 6 का 33? This is our condition. देखिए ये हमारी स्थिति है। Now do we wonder why we are not fruitful? अब हमको आश्चर्य हुआ है कि क्यों हमें फलवंतता हमें क्यों नहीं? Now do you know why we are also struggling like worldly people? अब आपको क्या पता चला कि हम भी क्यों संसार के लोगों के जैसे हम भी संघर्ष क्यों करते Do हैं? you know why we are also working 15 hours like how the world works for 15 hours? क्या आप जानते हो कि जैसे संसार 15 घंटे काम करता है, हम भी क्यों 15 घंटे काम करते हैं? पता चला? Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? I'm just trying to convey something important to you here. और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपको यहाँ पर बोध दिलाना चाहता हूँ। We don't keep the word in us. हम हमारे अंदर उस वचन को बनाए नहीं रखते। The word has to remain. वचन बना रहना चाहिए। Then he says, और उसके बाद वो कहता है, then you will be fruitful. और तब तुम फलवंत होंगे। Then you will be fruitful. और तब तुम फलवंत होंगे। Then you will be fruitful. और तब तुम फलवंत When होंगे। will I be fruitful? मैं फलवंत कब होऊंगा? When I remain in him. और जब मैं उसमें बना रहूंगा And his words remain in और me. उसका वचन मुझ में बना His रहेगा। words remain in me. उसका वचन मुझ में बना Do you रहेगा। want a very quick way to have your life turned around? क्या आप चाहते हो कि आपका जीवन बहुत ही जल्द जो है बदल जाए? Hallelujah. हालेलुया। Start keeping the word of God inside you. परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आप रखना सीख Let it लीजिए remain inside you. और आपके अंदर वो वचन बना रहे। Let it remain inside you. आपके अंदर वो वचन बना रहे। When we do that, our life is fruitful. जब ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन फलवंत होगा। God is at work in us. परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा And he है wants to be at work through us. और हमारे जरिए हमारे द्वारा वो काम करना चाहता You है। are in an office. आप उस ऑफिस में हो। Do you know why you are in that office? आप जानते हो क्यों आप उस ऑफिस में हो? One thing to earn money. और एक बात है कि आप पैसे कमाने के लिए हो। That is for you. वो तो आपके लिए है। But what is it for God? लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? He wants to work through you in that office. वो आपके द्वारा उस ऑफिस में काम करना But we चाहता are है। so busy trying to get our money लेकिन हम इतने हमारे अपने पैसे को कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं that we have no time to ask
ask God, like, Lord, okay, now I've been here for like 15 years. Sorry, not even one day I have asked you, like, why have you kept me here? So please tell me, like, what is your plan or what is your agenda through keeping me in this place? तो हम इतने व्यस्त होते कि हमें परमेश्वर को ये पूछने का समय भी नहीं मिलता कि प्रभु तकरीबन 15 सालों से मैं इस ऑफिस में, मुझे माफ कीजिए प्रभु कि आपके बारे में मैंने नहीं बताया, आपकी इच्छा प्रभु मेरे द्वारा इस ऑफिस में क्या है मैंने अभी तक पूछा नहीं। That is something that God wants to do through us. ऐसी कुछ बात है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। Fruitfulness has an opposite. फलवत्ता का एक विरोध की बात A है very dangerous synonym. और बहुत ही खतरनाक ऐसा पाप अपने आप में। Synonym, that means similar meaning. माफ कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक ऐसे समांतरता का उसका मतलब है। Fruitfulness और फलवत्ता is always confused with busyness. और हमेशा जो है व्यस्तता में ये जो है दुविधा में पड़ जाता है। If I am busy, अगर मैं व्यस्त हूँ, it does not mean I am fruitful. इसका मतलब ये नहीं कि मैं फलवंत हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I can take a one-day pass from CST to Kalyan. और CST से लेकर कल्याण तक का एक दिन का पास ले सकता And हूँ। from morning 6 o'clock और सुबह 6 बजे से लेकर till night 12 o'clock, और रात को 12 बजे I तक can just sit in one train और मैं एक ही ट्रेन में बैठा रह and सकता हूँ। keep doing up and down, up and down, up and down. और जो मैं जा सकता हूँ उसी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। Just sit in the train. और बस ट्रेन में बैठा हुआ। Rajesh calls me at 12 o'clock in the afternoon. और दोपहर को राजेश जो है 12 बजे मुझे फोन करता है। Says, Joel, what are you doing? और पूछता कि जोएल आप क्या कर रहे Oh, हैं? sorry, brother, I'm busy. I'm going to Kalyan now. अरे माफ कीजिए भाई मैं व्यस्त हूँ, मैं कल्याण में जा रहा हूँ। 1 hour later, he calls me. और 1 घंटे के बाद मुझे कॉल Oh, करता sorry, है। brother, I'm busy. I'm in the train. I'm going to VT now. और माफ कीजिए भाई मैं व्यस्त हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं बीटी जा रहा हूँ। Evening 6 o'clock, he और calls. शाम को 6 बजे फोन करते हैं। Sorry, brother, I'm in the train. I'm busy. I'm going to Kalyan now. माफ कीजिए भाई मैं ट्रेन में हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं कल्याण जा रहा In हूँ। his mind, he'll be thinking, और ये अपने मन में इस बात से ऐसा सोचेगा, goodness, Joel is so busy. अरे बाप रे जोएल तो इतने व्यस्त है। But I only know how busy I am. लेकिन मैं ही खुद जानूंगा कि मैं कितना I व्यस्त हूँ। have been busy the whole day, मैं पूरा दिन तो सचमुच व्यस्त ही था, but my fruitfulness was zero. लेकिन मेरी फलवंतता की जो बात थी वो शून्य था। Hallelujah. हालेलुया। Lot of times we can be busy, बहुत सारा समय ऐसा हो सकता है कि हम व्यस्त हो, but you need to ask yourself, are you fruitful? लेकिन आपको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आप फलवंत हो। Ask youngsters nowadays in front of the computer. और जवानों को जो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं उनको पूछिए, 3 hours, 4 hours. 3 घंटे 4 घंटे, What are you doing? अरे तुम क्या कर I'm रहे busy, mommy. हो? अरे मम्मी मैं बहुत ही व्यस्त I'm हूँ। busy, daddy. और डैडी मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। The best way to have control on children on the computer is this. और देखिए बच्चों को कंप्यूटर पर जो नियंत्रण करने का बेहतर और जो तरीका ये वो ये है। After they finish using the computer, और कंप्यूटर का वो उपयोग करने के give बाद them a piece of paper और एक पेपर उनको दो and tell them, now come on, write on this what all you learned from the computer today. और उनको बोलो आप लिखो कि कंप्यूटर से इतने घंटे पर तुम बैठे हो क्या सीखा तुमने, लिखो। 500 times they will write Facebook, 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 Facebook. और 500 बार यही लिखेंगे फेसबुक फेसबुक फेसबुक। So they were busy for 3 hours, और 3 घंटे पर व्यस्त रहेंगे, but the usefulness was zero. लेकिन उनकी जो उपयोग की बात थी वो शून्य था। How can I be fruitful for God? और परमेश्वर के लिए मैं कैसे उपयोगी रहूंगा? By being conscious of being fruitful. और जो है विवेक जो है सचेत रहने के द्वारा कि मैं Exactly. फलवंत हूँ। You have to be conscious of being fruitful. और फलवंत होने के लिए आप सचेत रहना है। You are not fruitful because you're busy. आप व्यस्त हैं इसलिए आप फलवंत नहीं हो। Oh, Pastor, I'm busy today. अरे पास्टर जी मैं आज बहुत ही व्यस्त हूँ। I'm busy in the evening. अरे मैं शाम के समय व्यस्त हूँ। Busyness does not result in fruitfulness. व्यवस्था और बहुत ही आप व्यस्त हो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आप फलवंत हो रहे हो। Every day you need to ask yourself this question. हर दिन अपने आप से ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना I होगा। am busy. I've been busy from morning 9 o'clock to evening 9 और o'clock. सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं बहुत ही व्यस्त था। But how fruitful have I been today? लेकिन आज मैं कितना फलवंत रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. How fruitful have I been today? आज मैं कितना फलवंत रहा हूँ। You know, it is only fruitful people that can pursue their inheritance. आप जानते हो केवल फलवंत लोग ही अपने मिरास को अपने आशीर्वाद का पीछा कर सकते हैं या उसके पीछे जा सकते It हैं। is only fruitful people that receive the blessings of Abraham. और केवल फलवंत लोग ही अब्राहम के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते God हैं। wants you to be fruitful. परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत बने What रहें। is fruitful? फलवंत यानी इसका मतलब क्या? Not what I do, मैं करता हूँ ऐसा नहीं, but what God wants to do in and through me. और परमेश्वर मेरे अंदर और मेरे द्वारा क्या करना चाहता है ये वो बात। I'm going to be for 9 hours in work today. और आज मैं 9 घंटे काम पर रहने वाला हूँ। So how can I be fruitful? और इसलिए मैं कैसे फलवंत रहूंगा? Before I start my work, और मेरे काम की शुरुआत करने से पहले asking the Lord, परमेश्वर से पूछ ले, Lord, 9 hours I'm going to be in this place. परमेश्वर 9 घंटे भर में यहाँ पर रहने वाला I'm हूँ going to do certain responsibilities. और मैं ऐसे ऐसे कुछ जिम्मेदारियों को मैं करने वाला हूँ That प्रभु। is my part, Lord. और ये मेरा भाग है प्रभु। But for 9 hours, लेकिन 9 घंटे तक along with me, even you are going to be here. मेरे साथ आप भी यहाँ पर हो प्रभु। So what is
is your plan, Father, today? और इसलिए हे पिता, आपकी आज योजना क्या है प्रभु? Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया। For 9 hours we are going to be together. 9 घंटे पर हम साथ में रहने वाले हैं प्रभु। I am going to do my work. और मैं तो अपना काम करने वाला हूँ। I will teach. मैं सिखाऊंगा। I will look after accounts. और मैं सारे अकाउंट्स को देखने वाला I हूँ। will look after management. और मैं मैनेजमेंट को देखने वाला I हूँ। will do my project. और मेरा प्रोजेक्ट में करने वाला हूँ। This is my responsibility, ये Lord. मेरी जिम्मेदारी है So प्रभु। I'm going to be busy with this. और इसलिए मैं इन सारी बातों में व्यस्त रहूंगा। But you are going to be with me for 9 hours. लेकिन अगले 9 घंटे तक आप मेरे साथ रहने So वाले हैं what प्रभु। is your agenda, Lord? इसलिए प्रभु आपका उद्देश्य क्या है? What is that fruitfulness that I am going to bear today? कौन सी ऐसा फलवत्ता है जो आज मैं उस फलों को देने वाला What हूँ? is your plan to do in and through me today? मेरे अंदर और मेरे द्वारा आपकी कौन सी योजना है जो आप करने वाले हो? Hallelujah. हालेलुया। When you start doing this in your daily life, जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करने का जब आप शुरुआत I am करोगे, telling you, you will see ordinary situations turn into extraordinary. तब आप देखोगे कि सर्वसाधारण जो स्थितियां असाधारणता में बदल A जाएगी। small work that your boss gives you will get you so much praises. और छोटा सा काम जो आपका बॉस आपको देता है उसकी बहुत ही बड़ी बढ़ाई आपको मिलेगी। The most difficult task will become so easy. और बहुत ही जो कठिनाई का जो काम था वो बहुत ही आसान हो जाएगा। What would take you 7 hours will now take you 3 hours. जिस बात को करने के लिए आपको 7 घंटे लगेंगे उस बात को आप करने में आपको केवल 3 घंटे How लगेंगे। is this happening? और ये कैसे होगा? Because I have become fruitful. क्योंकि मैं फलवंत हुआ हूँ। Hallelujah. Hallelujah. It's no longer just my efforts. इसके आगे केवल मेरी कोशिश और मेहनत I नहीं, have got double support. मेरे पास जो है 2 गुना सपोर्ट It है। is not just my wisdom. केवल मेरी ही बुद्धि नहीं, It is now God's wisdom that's helping me. अब परमेश्वर की बुद्धि है जो मेरी मदद कर रही It है। is now just not my abilities. अब केवल मेरी काबिलियत नहीं, It is now God's ability that is also helping अब me. परमेश्वर की काबिलियत है जो मेरी मदद कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, when you've now got so much, देखिए अब इतना परमेश्वर आपके अंदर है, there is nothing that can stop you from getting success that day. तो उस दिन सफलता न पाने के लिए कुछ भी बात आपको रोक नहीं सकती। Hallelujah. हालेलुया। Everything that you do will prosper. और जो भी कुछ आप करोगे उसमें आप सफल होंगे। Let's just read that. I want to read that one verse from Psalms chapter 1 verse 3. भजन संहिता पहला भजन का 3रे वचन में मैं पढ़ना चाहूंगा। He shall be like a tree और उस वृक्ष के समान वो होगा planted by the rivers of water, और बहती नालियों के किनारे लगाया who गया brings forth his fruit in season. और वो अपनी ऋतु में फल लाता You है। know what is the meaning of fruit in season? ऋतु में फल लाने का मतलब क्या है मालूम? Completing the right work at the right time. और सही काम को सही समय पे पूरा करना। Hallelujah. हालेलुया। That is called fruit in season. और उसी को कहता है कि ऋतु के मुताबिक का फल। When your boss says I need this project by 5 o'clock, जब आपका बॉस कहता है कि 5 बजे के अंदर ये प्रोजेक्ट मुझे पूरा चाहिए, if I'm able to give it at 5 o'clock, अगर मैं 5 बजे बराबर उसे 5 बजे के अंदर दे देता हूँ it पूरा means I have given my fruit in season. इसका मतलब मैंने अपने फल को बराबर मौसम में या ऋतु में दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah. So he will bear his fruit in season. तो इसलिए वो अपने फल को बराबर मौसम में दिया करेगा His leaf also shall not wither. और उसके पत्ते बिल्कुल नहीं मुरझाएंगे। What is the use of a leaf in a tree? और पेड़ में ये पत्तों का क्या काम होता है? Those who know a little bit of zoology, what is the use of a leaf in a tree? ज़ूलॉजी के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि वो पेड़ों पर जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग क्या होता है? Leaf does something very important. और पत्तियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं। Something that our lung does. ऐसी कुछ बात जो हमारे फेफड़े करते हैं, Something that our nose does. हमारा नाक जो काम करता है वैसे, It breathes. और वो श्वास लेता है। Hallelujah. हालेलुया। Try closing your nose and sitting for 2 minutes. अपने नाक को बंद करते हुए 2 मिनट बैठने का प्रयत्न करें। Praise the Lord. Praise the Lord। No, you really got to let it open. आपको तो खोलना ही पड़ेगा। The same is the leaf. यही बात जो है पत्ते भी ऐसे ही The करते हैं। leaves in a tree, और पेड़ पर जो पत्तियां होती it हैं breathes, और वो श्वास लेती है keeps a tree healthy. और उस पेड़ को जो है सेहतमंद तंदुरुस्त रखती It है keeps a tree stress free. और वो उस पेड़ को जो है तनाव रहित रखती It है keeps a tree tension free. और उस पेड़ को वो पत्तियां जो है तनाव रहित रखती When है। you are a tree planted by the water, जब आप ऐसे पेड़ हो जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हो when you bear your fruit in season, और जब आप अपने फलों को मौसम में आप जब दोगे, your leaves will not wither. आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। You will not become a victim of stress. आप जो है तनाव के पीड़ित नहीं बनोगे। You will not become a victim of depression. आप जो है तनाव और दुख के ऐसे पीड़ित नहीं You will बनोगे। not become a victim of loneliness. आप अकेलेपन के इस प्रकार से पीड़ित नहीं बनोगे। In medical field right now, और मेडिकल फील्ड में इसी समय the most demand is right now for doctors who are psychiatrists. और ऐसे जो डॉक्टर ज्यादा
सोचते हैं। People are coming to doctors with lot of stress problem. और दो लोग जो है डॉक्टर के पास बहुत सारे दिमागी तौर की समस्या से आते If you हैं। look at the last 10 years in our country, अगर पिछले 10 सालों में हमारे देश में अगर आप देखोगे statistics says like this. और इस प्रकार से सारा बातें आंकड़ा बताती है Depression has increased 700 fold. और जो है तनाव जो है 700 और 700 गुना जो है तनाव बढ़ चुका है। 10 years back, if there was one person who was depressed, 10 साल पहले, 10 साल के पहले अगर एक व्यक्ति तनाव में अगर होता, right now today there are 700 people. तो इस समय ऐसे उसकी तुलना के स्वरूप में 700 लोग तनाव में हैं। Hallelujah. Hallelujah. Everyone wants to be successful. और हर एक जन जो है सफल होना चाहता है Everyone wants money. और हर एक जन को पैसा चाहिए। Everyone wants to be an engineer. हर एक जन इंजीनियर बनना चाहता है। Everyone wants to have a job that gives 1 lakh a month. और हर एक जन को ऐसा काम चाहिए जो महीने में तनख्वाह के स्वरूप में 1 लाख रुपए मिले। Everyone wants their own house. और हर एक जन को अपना खुद का घर चाहिए। Everyone wants an old car. हर एक जन को जो है अपनी खुद की कार चाहिए। Everyone wants to go on foreign holidays. और हर एक जन जो है छुट्टियों में बाहर गांव घूमना चाहता है। Everyone wants their children to become IAS officers. हर एक जन जो अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। Every parent wants their